on the stage. The chair of this session, Professor Nandakishore Acharya ji. नंदकिशोर आचार्य जी विविध विधाओं में अपनी सृजनात्मकता के लिए मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भुवनेश्वर पुरस्कार, नरेश मेहता स्मृति सम्मान, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, महाराणा कुंभा पुरस्कार तथा भुवालका जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा सम्मानित हुए हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा तथा प्राकृत भारतीय अकादमी में अतिथि लेखक रहने के अलावा IIT हैदराबाद में प्रोफेसर और एमिनेंस के रूप में भी आपने कार्य किया। अकेले द्वारा संपादित चौथा सप्तक के कवि नंदकिशोर जी के अब तक 12 कविता संग्रह, 8 नाटक, 7 साहित्यिक आलोचना की पुस्तकें एवं संस्कृति, शिक्षा, राजनीतिक, आर्थिक चिंतन, मानवाधिकार एवं गांधी दर्शन पर केंद्रित 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अकेले निर्मल वर्मा उर्दू कवियों एवं अन्य कई लेखकों की संचयिकाओं, चयनिकाओं के संपादन के अतिरिक्त आपने अहिंसा विश्वकोश का संपादन भी किया, जिसे अहिंसा दर्शन के क्षेत्र में एक अप्रतिम योगदान माना गया। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक आयोजनों में रचना पाठ एवं व्याख्यान के लिए आमंत्रित आचार्य इंग्लैंड, चीन, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका तथा नेपाल की साहित्यिक शैक्षणिक यात्राएं कर चुके हैं। आपने रियोकान, जोसेफ ब्रॉडस्की, गैब्रियल गार्शिया लॉर्का, आर्नल्ड वेस्कर तथा M.N. राय के लेखन के अतिरिक्त कई आधुनिक अरबी तथा यूरोपीय लेखकों की रचनाओं का अनुवाद। आचार्य सर, हार्दिक स्वागत है आपका। Dr. Vedikil Raghavan ji was awarded PhD in English by the University of Calicut for his thesis on the political theatres of Dario Fo and Safdar Hashmi. Recruited by the Union Public Service Commission of India in 2002 as Assistant Professor of English, he had been working in Punjab University colleges under Chandigarh administration till he joined the Central University of Kerala as a faculty member in 2009. Apart from the book Agitation Propaganda Theatre, he has published in many reputed national and international publications, including The Frontline, Sahitya Akademi's Indian Literature, etc. His English translations of Safdar Hashmi's Hindi plays Allah Bol, Machine and Gaon Se Shahar Tak were published in Indian literature. He was bestowed with National Award for Academic Excellence, Guru Praveen by the Ministry of Human Resource Development, Government of India in 2002. He won the Central European University Scholarship for Advanced Study in Documentary Film in 2016. He is an alumnus of the University of Calicut, Kannur University, Film and Television Institute of India, and Central European University, Budapest. His academic visits abroad include Austria, Canada, Hungary, Slovakia, and Germany. Dr. M.A. Alwarji is an acclaimed Sanskrit scholar specializing in all the systems of Indian philosophy, in Nyaya and Vishishtadvaita system of philosophy. He has been working to date as Professor of Nyaya Shastra for more than 20 years at the Government Maharaja's Sanskrit College, Mysore, a constituent college of Karnataka Sanskrit University. Alwarji has been a research scholar for about 3 years at the Council of Philosophical Research, New Delhi, Rashtriya Sanskrit Vidyapith, Tirupati, Andhra Pradesh. He is an honorary director of the Sanskrit Foundation, Mysore, and honorary editor, advisor of research projects such as preparation of comprehensive dictionary of yoga, preparation of an electronic descriptive catalogue of manuscripts dealing with science and technology, and preparation of the history of the philosophy of Vishishtadvaita, to name a few. He is an also expert manuscriptologist and has authored 5 books and edited and published more than 50 books on various topics pertaining
to the fields of his expertise. अब मैं आदरणीय आचार्य सर से अनुरोध करूंगा कि वे इस सत्र का आरंभ करें। Respected dignitaries on the stage and off the stage, everyone at the Sahitya Academy, my dear friends, sabhi ko namaskar. A warm good afternoon to all. I plan to speak about a very localized socio-political, literary, cultural developments in one of the remotest villages of India and the present Kerala, and how these literary developments and cultural developments contributed greatly to the fast-growing freedom movement in this particular locality, which maybe I would say that has got a radius of maybe just 50 kilometers. Here in this village, small village named Velikotu, which is in the present Kasaragod district of present Kerala, freedom movement was primarily powered by or backed up by literature in general, patriotic songs, and theatre in particular. So I have titled my talk as Freedom and Renaissance Movements in Malabar in 1920s, Vidwan Payani Kelu Nair and his artistic activism. The de facto national anthem of Britain, titled God Save the Queen or God Save the King, was generally sung in many of the schools in India as the morning prayer during the British Raj. Either the original English version of the standard versions in English or in other Indian languages was sung during morning assemblies in the schools. The opening stanza of the anthem goes like this: Save our gracious Queen, long live our noble Queen. Save the Queen, send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the Queen. In 1926, a patriotic primary school teacher in the Malabar region of South India dared to replace the British anthem as the morning prayer song in school with an alternative anthem which expresses the true spirit of our freedom movement and love for the country under occupation. The teacher was Vidwan Payani Kelu Nair, who belongs to the Kasaragod district of present Kerala. The alternative anthem composed by Kelu goes like this: Think of our Indians. Of course, this is my primary translation, it's not perfect. Go before the motherland. Can mother who feeds us her breast milk be ever forgotten? Forsake caste pride and sing the song of unity. Wear pure khadi. Only it can break these bad times. Spin the chakra. Let this famine be over, comrades. Other than this, there's no way before us. Another alternative school anthem composed by Kelu in the early 1920s had the following beginning: My mind praise always those people only whose mission is peace, whose wealth is humility, whose grand deed is satyagraha, whose habit is sacrifice, whose life is to serve the world, who is protected by the wheel. My mind praise such people only. Of course, here none other than
Mahatma Gandhi is referred to. These are originally written in Malayalam language. In 1921, Vidwan P. Kelu Nair founded the Vijnanadayini Vayanashala or the Vijnanadayini Reading Room at Vellikot village in the present district of Kasaragod, which was then under the Mumbai presidency of the British India. The public library cum reading room, was earlier mentioning as reading community. I'm coming to that also. The public library cum reading room, which was a meeting place of the patriots of the area, was later expanded into a national or nationalist school in 1926, and Kelu himself took up the responsibility of the headmaster. He and other nationalist teachers of the school refused to draw salary from the British exchequer, declaring that they will draw their salary only from an independent Indian government. They also refused to accept any type of grant or aid for the school from the colonial government. The school had about 400 plus enrollments in those days. Along with Sanskrit, subjects like Malayalam, Kannada, mathematics, science and English too were taught in this school to the children from all castes, including girls except Harijans. It's a condition, without charging any fee. Kelu Nair's consistent efforts to admit Harijan students in the school failed thanks to the resistance of the conservative forces in the village. The curriculum included skill-based subjects like carpentry, spinning, masonry, metalsmithing, flooring, etc. In order to fight the ideological hegemony of the British imperialism, Kelu Nair established this school and converted it as a site for manufacturing national consciousness and cultural resistance. The school was imagined as an alternative model of educating Indians in Indian ways, not in the ways imagined by Macaulay and implemented by the educational apparatus of the British India. I'm skipping certain parts of this, purely biographical. Kelu weaponized literature in general and poetry and drama in particular for the cause of the independence of India in the second half of the 1920s. Freedom movement was perhaps the most powerful thing which ignited the literary talent in Kelu. However, in that small village, it was basically literature which actually impacted the freedom movement also. To take a specific example to illustrate this, in 1927, on the occasion of Mahatma Gandhi's proposed visit to Mangalore, which is about 100 kilometers away from Kelu's village, the particular village, Kelu wrote the following poem and made the students of the school and as well as young men of his village learn these lines by heart and later led them in the form of a procession to visit houses to announce Gandhi's proposed visit and to announce Gandhi's vision of independent India. Till his death in 1921, that was a suicide, Kelu remained an ardent disciple of Gandhi and true follower of Gandhian values. The poem Kelu composed on the occasion of Mahatma's visit to that area goes like this. The sacred full moon day is tomorrow, for which we have been waiting for long. Tomorrow is the golden festival wherein Gandhi's sacred feet will bless this land. No need of flower-laden pulpits to welcome the Mahatma. No need of floral tents. No need of festoons, drums and music. When millions of our land lie starving, blind and deaf, who is going to enjoy the fireworks? Let's bring solace to the poor by collecting money to Gandhi's Khadi fund. No way than this to help Gandhi. Kelu, along with a few other freedom fighters from the village, accompanied Gandhi
from his local railway station, Cheruvattur to Mangalore. I quote, Gandhi became a culture and Gandhism took up its deep roots in Malabar in the 1920s, primarily because of Kelu Nayar's literary and theatrical interventions. Gandhi's clarion call, Khadi is not a cloth, but a thought, brought in a new stream of thought in the area. Following this thought, Kelu Nayar and others organized big meetings of Congress in Kasaragod in 1927 to oppose the proposed visit of the Asylum Commission. In 1925, a permanent theatre ensemble was founded by Kelu in the village as the cultural wing of his school, where regular theatre workshops and mounting of Malayalam music plays were held. The ensemble was named Vijnanadayini Nataka Kalari, Vijnanadayini Theatre School. Kelu and his theatre ensemble was primarily instrumental in liberating the Malayalam music drama of the time from the over-influence of Tamil music dramas. For the staunch nationalist in Kelu Nayar, drama was often a camouflage to propagate the messages of India's freedom struggle amongst the ordinary masses of Malabar region in the pre-independent India. He used to subtly insert patriotic couplets and dialogues in his music plays frequently, though the main themes of those plays were largely mythological ones. The nationalist movement, Gandhi, Charkha, Khadi, casteism, communal harmony, eradication of poverty, etc. were overtly and covertly presented by him through his music plays, converting theatre as a context or an excuse in the larger vision of freeing the land from the colonial rule. To provide an instance, Kelu's music drama, one of his music dramas, Pakanar Charitam, sorry there is an error in the printing, that is the history of Pakanar. Pakanar is a Dalit folklore hero who was also a great Sanskrit scholar. In his music drama, Pakanar Charitam features the following song. To shed the burden of subservience, unity is the only way before Indians. Many a caste and many a class have made us evil in many ways. Try again and try again to eradicate these evils. Examples for using the public sphere of theatre to address topical social issues can be found in many of the plays scripted by Kelu. The following epilogue in Kelu's play, Kabir Das Charitam, the story of Kabir Das, goes against the tunnel vision of uncritical religiosity and on the need to civilize ourselves through education and learning. The lines go like this. Which was the sacred mantra given by holy beings, Ram, Christ, Karna, Nabi, Shibi, to the world to overcome life's struggle. Surrender yourself to sing the song of unity to the whole world. Skipping a few more lines there, paragraphs there. Kelu did not go to temples to pray on the birth of his first son in October 1927. Instead, he celebrated the event by mounting a ticket-free performance of one of his plays for the people of his village, a free show. It was to finance the freedom struggle at the local space. Kelu spent his earnings from the theatre box office, where the cost of a ticket ranged from 2 paise to 10 paise. On 18th April, Kelu poisoned himself to death inside his playhouse, laying his head on the national flag of pre-independent India. Kelu has left behind a rich legacy of poetry, music plays, slogans supporting the freedom movement, and many patriotic songs. He was a pioneer freedom fighter with an artistic spirit, a great social reformer who significantly contributed to the anti-caste struggles, a political orator who organized grassroots level mass movements against the British, and a prolific author in Malayalam even before the territory of Kerala was not
imagined by the Malayalis. And he was also a key player in South Indian Renaissance movement, especially in the Malabar region. In 1928, Kelu started to run a manuscript or handwritten magazine named Shakti or Power in Malayalam to propagate the message of freedom struggle among many other things. The objectives of the magazine Shakti were to help maximum in the welfare of the villagers, to oppose strongly superstitions and false religious rituals, to express political opinions in fearless ways and in powerful language, to unify the youth with ideology and ethics. In the first issue of this magazine, Kelu had written an article against child marriages in India. There he says that, I can prove that child marriage is anti-God. There are many conservative thinkers who oppose just expensive weddings but support child marriage. Let me ask them a question humbly. Can you cite a single mantra from the Vedas that advocate child marriage? In 1928, Lakshmikuti, one of the early girl students of the Vidyadayani school, refused to marry until she turned 18, and on the wedding day she refused to go to her husband's house because the groom had given her a foreign made khadi sari. And this girl later became one of the key activists of the Congress party in the area. So let me conclude. Kelu was a pioneer freedom fighter who had shared the same stage with Pandit Jawaharlal Nehru in one of the conferences in Payyanur. He was also an attendee of the 1927 Madras and 1928 Calcutta sessions of International Congress Party in the capacity of an AICC member. Mr. M.A. हरि ओम ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्. Respected members of this august audience, both on and off the stage, friends who are connoisseurs of literature, I am really proud and honored to be speaking a few words on nationalism as depicted in Sanskrit literature. When I was going through the list of speakers, I was a little bit surprised and also proud that probably I am the only speaker specializing in Sanskrit literature to have been invited to this conference. Sanskrit literature abounds with ideas about what we call as Rashtravad in the modern context, or nationalism. Because the concept of Rashtra is mentioned several times in the Vedic literature and also the classical Sanskrit literature, which was started by sage Valmiki, continued by sage Vyasa in the Mahabharata, and further by great poets like Kalidasa, Bhavabhuti, Bhasa, etc. So as I mentioned, this mantra, which is chanted in the beginning of all auspicious events, says, Dhruvanta indrashcha agnischa rashtram dharayatam dhruvam. Let all the deities who preside over this universe protect our country. And it says, Dhruvam te raja, and let the king who presides over the country be safe and healthy so that we can take care of the kingdom the right manner. Further, we see, Asmin rashtre rajanya ishavyashuro maharatho jayatam. So everywhere, when we talk about Sanskrit literature, especially Vedic literature,
it says, Sarve Janaha Sukhino Bhavantu, Samasta Sanmangalani. There is always a benediction about every person to be happy in this world, and every person should have auspicious tidings throughout his life. When we come to the Ramayana, we find a very wonderful statement that is told by Rama. After he conquers Lanka and he becomes the chief of Lanka also in a way, when he is asked to take over the administration of Lanka, to put it in modern terms, from this statement. When he is asked to take over the riches of Lanka, take over the entire administration of Lanka, which is abounding with several, today we would say trillions of dollars worth of gold, silver and all those things, he says, Api Swarnamayi Lanka Name Lakshmana Rochate Janani Janma Bhumischa Swargadapi Ganiyasi. Even though Lanka is full of gold, it's actually made of gold itself, it's a city made of gold. Today we talk about several sultans like Sultan of Brunei, whose car is made of gold, whose seat is made of gold, whose bed is made of gold, etc. We actually can contrast it with the riches that are found in Lanka, that were found in Lanka when we study the Sundarakanda of Ramayana, of Valmiki. So Rama says, Api Swarnamayi Lanka Name Lakshmana. Even though Lanka is full of gold, it's a city of gold. Today we have golden temples, etc. Which are made of gold, but it's a city of gold and everything that is gold. But I don't know. And he says, Janani Janma Bhumishta Swarga. So the mother and motherland, as we can put it, is much more, more than heaven itself. Because heaven is a place where you don't experience any sort of misery. In Sanskrit we say, Yenna dukkhena sambhinna, rachagrastam anantaram, abhilashopanitante, yat sukham tat svah padasva. So heaven is a place where there is not even an iota of misery, past, present or future. That's why we all say we want to go to Swarga. But Rama says, Janani Janma Bhumishta Swargarati. I deem this, my motherland Ayodhya, more than I give it more value than what is given to heaven itself. So I don't think that Lanka should be taken over by him. So what he does, he puts Vibhishana back in charge of Lanka and coronates him and then comes back. So this is the greatness of the motherland, which is nothing but nationalism or Rashtra, as we put it in modern terms. Then when we come to the Arthashastra, there's a huge amount of information available about the concept of Rashtra. So he talks about what is known as a Janapada Nivesha, Janapada Pratishtha, and several other things, like how, on what principles should a nation be constructed upon. What are the underlying principles? Today we say the Constitution is the work that gives us the underlying principles of the nation of India, the concept of the nation. But Chanakya gives a much more elaborate and magnanimous view of the country or Rashtra as it is. He deals with each and every aspect of Rashtra, like its economy, its administration, polity. I would not like to use the word politics, I would like to use polity in this context. Polity and several other things which are actually unknown to us today. We are all, including me, we are all ignorant about the greatness of the Arthashastra, though they have been brought out in some places. So he says, which are the qualities a minister should have? Which are the differentiates between Amatyas and Mantris? And he says, what is the qualification required by a finance minister, required for a finance minister? What is the qualification required for a defense minister, etc. Unfortunately today, many intellectuals are of the opinion, it's not my opinion, that
There is no qualification prescribed for a minister to hold its post in India. But Chanakya, or Vishnugupta as he was known, prescribes these qualifications and says only when the ministers are endowed with these qualities, they can do justice to the administration. So we see that nationalism is at peak when we study the Arthashastra. Similarly, when we talk about the qualities of the kings, the Mahabharata abounds with information. More than 20,000 shlokas of the Mahabharata are devoted to the administration of the country. So you have two important parvans known as Shanti Parvan and Anushasana Parvan, which deal purely with regard to these aspects, including spiritual aspects. Many a times people say that in the constitution we should have included the concept of spirituality also. Spirituality does not refer to any one particular religion like Hinduism or Christianity or Islam or Sikhism or anything like that. Spirituality really transcends all religions and it actually encompasses the whole of humanity. So many people are of the opinion that it should have been on the principles of what we call as dharma. So many people today, we as persons, as soon as we talk about dharma, we are branded as non-secularists or some communalists or something like that. But in Sanskrit, when you use the word dharma without any prefix, so today we use it as Hindu dharma, Islam dharma, Christ dharma, etc. But in Sanskrit, when you use the word dharma, it says dharmo vishwasya jagata pratishtha. So dharmo dharayate praja, it says. So dharma vishwasya jagata pratishtha. So the entire world should be based on the principles of dharma. Then only the world will be peaceful, not with wars and terrorism and other things that we are seeing. And further, when we come to the Raghuvamsha of Kalidasa, he beautifully delineates the aspects that a king should have. He actually narrates the qualities of King Dilipa, with whom the narrative of Raghuvamsha starts. And he gives a wonderful account of Dilipa in about 60 shlokas. It is very, very attractive and also it's a model for all of us to follow. So I will just narrate these two verses and conclude my address because the time of about 15 minutes given to me is over. So when he talks about Dilipa, he says, Rajanam vinayadhanat dakshanat dharanaadapi sabita pitarastasam kevalam janmahetavaha. What was the kind of values the king Dilipa had instilled in his subjects? He says, Prajanam vinayadham. The first quality a person requires to inculcate in his life is vinaya or modesty. When modesty comes, everything will follow. And that is gained by vidya or knowledge. So there is a very beautiful saying in Sanskrit which says, Vidya dadati vinayam, vinayadhyati patratam, patratva dhanamapnoti, dhanad dharmam natasya. What is the way to prosperity? What is the way to happiness? It's very beautifully described in Sanskrit literature in Shloka. It says, Vidya dadati vinayam. When a person becomes knowledgeable, he becomes modest. Only persons who are ignoramuses who are totally ignorant, they are immodest, they are haughty. And vinaya dhyati patra. When he becomes modest, he will automatically be fit to become the recipient of all the auspicious. And patratva dhanamapto. When he becomes fit to receive everything, he receives money also. And from money he attains dharma, righteousness and all other good qualities, virtues, and dhana, dharma, natasya. So the first and most important component that all the subjects like us have to inculcate is vinaya. And that was well inculcated by King Dilipa, who was the model king, who was the
model administrator who ruled over the kingdom or the nation or the Rashtra. So Pradhanam Vinaya Dhama. He instilled a sense of modesty in all the subjects. And then Rakshanat Haranat. Then he protected them and also he took care of all their needs. So today we see free rice is given, freebies are being doled out, to put it in modern language. But not like that. Because of that, several people are becoming irresponsible. It's not like that. They should have the sense of responsibility and then only these freebies should be. Unless that happens, the nation will not progress. So therefore, it is said that it is the father who takes care of the family. So the king Dilipa, who was the model king, so it applies to all the model kings of ancient India. So he says, Sapita, he was the father of all the subjects. And Pitarastasam Kevalam Gender. So the biological fathers, they were only biological fathers, they were not the real fathers, because King Dilipa played the role of the father. So this is the model of nationalism that is given in ancient Sanskrit literature. Finally, with regard to the British freedom struggle we had with the British, and also in the freedom that we have got, the Mahabharata delivers a very punching statement. It says, Sarvam Paravasham Dukkham, Sarvam Atmavasham. What is the concept of happiness? When do we actually become sad? We become sad when things go out of our control. We become angry when things go out of our control. So everything should be Atmavasha, everything should be under our control. So since the administration of the country was not under our control, we suffered a lot. We know how the British actually took the raw material from here, manufactured the goods and sold it back to us 10 times, for 10 times the cost. So we had the British exploit us in all manners because we were not in charge of our administration. So in the Bhishma Parva, Bhishma says, keep everything under your own control so that you are happy. So he applies this principle to the freedom movement also. He also says that only when we are in charge of our administration. Today we talk about democracy, which is for the people, by the people, etc., as Socrates had mentioned. But today in India it's not so, that's a different issue. But the kings were all benevolent monarchs. And every subject in the kingdom had a say in the running of the nation. There are several evidences to prove this. So, though we had kings in those days, that is, we had the monarchy in those days, the subjects had much more freedom than what we have as a democracy. Because in the Mahabharata we find that there was a big bell which was hung in front of the palace, where anybody could ring the bell and give out his complaint, and that would be addressed immediately. So the democracy, as it is called, existed in ancient India also, where the monarchs were benevolent and the subjects of those days had much more freedom in airing their views without any hesitation, and the king would also listen. So this is the concept of nationalism that is espoused in Sanskrit literature. There are hundreds of verses that can be quoted from the Mahabharata. As I said, more than 10,000 verses out of the 1 lakh verses which are found in Shanti Parva and Anushasana Parva, which constitute the major portion of Mahabharata, which does not have the story portion. It is actually dedicated to this subject only, but not only in this dimension, in all its dimensions. And it's a great experience to study that, and within the given time I hope I have done some justice to the subject I have been given, and I am extremely thankful to the authorities of the Sahitya Academy for giving me an opportunity. I thank you all for your patient hearing, and I would be very happy to have your feedback. Sarvebhyah dhanyavadaha. Namo.
प्रोफेसर कपिल कुमार आ गए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करके तो थके हुए आए हैं, लेकिन इससे बता यही है। Mr. Chairman, and I am sorry because this TV channels took me in the morning for this Ukraine war thing and all, and I just forget that it was 13, and I thought it was 20. I couldn't recall. Anyway, I am going to speak on a literature that has been suppressed in this country, sidetracked in this country by those who sat on the political power in Delhi since 1946 from the interim government period as Prime Minister of the interim government and then Prime Minister of the Indian Dominion. I very cautiously use the word Indian Dominion for 15th August. I don't use the word Indian independence, and if in discussion something comes up, I'll be able to explain it up. And this is the literature related to the Azad Hind Fauj, Azad Hind Sarkar and Netaji Subhash Chandra Bose. कई मिथ्स, मेरी अभी पुस्तक आई है पिछले महीने, कई मिथ्स जो थी कि आजाद हिंद फौज को जनरल मोहन सिंह ने बनाया, द फर्स्ट कमांडर नो डाउट ऑफ आजाद हिंद फौज, लेकिन उसको बनाने में जो गदर पार्टी का रोल था, राज बिहारी बोस का, सरदार अमर सिंह का, प्रीतम सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, और अब ऐसे ऐसे दस्तावेज निकल के सामने आए हैं कि 1939 से सुभाष चंद्र बोस ने एम ऑर्गेनाइजेशन बनाया था क्रांतिकारियों का, जिन क्रांतिकारियों के लगातार आपस में संबंध थे। और के एम मुंशी अपनी पुस्तक में लिखा है कि वाइसरॉय ने मुझको एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट दी, सीक्रेट, कि ये जाके गांधी को दिखा दो। और मैंने जाके वो गांधी को दिखाई तो गांधी बड़े हैरान हुए, क्योंकि उस रिपोर्ट में था कि बोस तो जापान और चीन से संबंध बनाने में लगे हैं। और फिर मैंने वो रिपोर्ट जाके वापस कर दी वाइसरॉय। तो 1939 का है, ये तो क्लियर समय हो गया कि 1939 के अंदर बोस को त्रिपुरी में क्या सलूक जो बोस के साथ किया गया, वो बड़ा स्पष्ट हो गया कि मैं हमेशा इस बात को डाउट करता था कि इसके पीछे अंग्रेजों का हाथ था, और उस दस्तावेजों ने प्रूव किया। लेकिन मैं अब इसमें लिटरेचर पे आ रहा हूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब 42 में शुरू हुआ, तो ये पहला ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन के लिए कांग्रेस ने कोई भी कार्यक्रम नहीं दिया था। अगर आप 1920 का ऐसा हो आंदोलन दिखाएं तो उसमें वो सकारात्मक कार्यक्रम है, नकारात्मक कार्यक्रम है, 1930 में भी कार्यक्रम है कि नमक विद्रोह करना है, लेकिन 1942 के अंदर कोई कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया था। सिर्फ ये कहकर के छोड़ दिया गया, करो या मरो। और करो या मरो का नारा जो है वो कितना अहिंसावादी है, इसका निर्णय आप खुद ले सकते हैं। जो गांधी पे बार बार ये आता है कि गांधी बहुत बड़े अहिंसावादी थे, जिन्होंने के प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती तक करवाई अंग्रेजों की सेना के अंदर, जानते हुए कि युद्ध में जाके वो लड़ेगा और गोली खाएगा। और खुद ये लिखा है कि हम जब खेड़ा के गांव में गए, जहां हम किसान आंदोलन के लिए जाते थे, हमें लोग मालाएं पहन के बुलाते थे, और जब हम अंग्रेजी सेना के लिए भर्ती करवाने के लिए गए तो हमें गाँव से बाहर निकाल दिया। तो मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं आना चाहता, लेकिन ये जो कवर बना दिया गया इस देश के अंदर, ये जो गाना एक बना दिया गया कि दे दिया मैं आजादी बिना तीर बिना ढाल, मेरा बस चले तो आज इस गाने को हिंदुस्तान में मैं बैन करवा दूं, क्योंकि ये गाना हमारे उन सब क्रांतिकारियों को, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, 1857 के वीरों को जो है उनको अपमानित करता है, ये कह करके कि हमको खाली भूख हड़ताल और धरने में बैठ के हमको इस देश को आजादी दिला दी। आजाद हिंद फौज को लेकर के नेताजी ने पहली ब्रॉडकास्ट, 2 ब्रॉडकास्ट की है बर्लिन रेडियो से, 17 अगस्त और 31 अगस्त 1942 में। इसमें उन्होंने पूरा कार्यक्रम दिया है कि इस आंदोलन के अंदर क्या होना चाहिए, कि कैसे वॉर प्रोडक्शन को रोकना है, कैसे अंग्रेजों की इंडस्ट्री को फेल करना है, कैसे इनके कम्युनिकेशंस को फेल करना है। और यहां तक उन्होंने उस कार्यक्रम के अंदर दिया है कि जो खानसामा अंग्रेजों क्या काम करते हैं, वो भी ऐसा खाना बनाए कि अंग्रेज बीमार पड़े। 32 इस तरीके के प्रोग्राम दिए हुए हैं। और उसके बाद में आजाद हिंद फौज की तरफ से जो बर्लिन रेडियो है, और जो सबसे बड़ी बात जो है, जो पत्रकारिता है आजाद हिंद फौज की। अब देखिए, दुनिया में कोई पत्रकार ऐसे नहीं है जिन्होंने 3000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। राम सिंह रावत और एन सुंदरम जो वहां बैंकॉक में पत्र निकालते थे आजाद हिंद फौज का, उसके बाद 45 में ये लोग पैदल चल करके इम्फाल में आए हैं, और उसके बाद में आप कहा गया आपके ऊपर ही गिरफ्तार हुए। लेकिन जो इनके वर्णन है, आजाद हिंद
अखबार जो निकलता था वो उर्दू में भी निकलता था, हिंदी में भी निकलता था, अंग्रेजी में भी निकलता था, और उस अखबार को लगातार सिंगापुर रेडियो से, बर्लिन रेडियो से, बैंकॉक रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाता था। और लखनऊ आर्काइव्स के अंदर मुझे एक ऐसी फाइल मिली जिस फाइल के अंदर बड़े ही अच्छे हस्तलेख जो हैं एक एक वर्ड इन अखबारों के मौजूद कि जिनको हमारे जो अंदर जो लोग आजाद हिंद फौज की मदद कर रहे थे उन्होंने उन ब्रॉडकास्ट को सुना और उनको उतारा, और उसके बाद में वो हाथ से उसका जो है सर्कुलेशन होता था। और इस प्रकार के लिटरेचर में ये देखिए अंग्रेजों ने ये किया कि उन्होंने, आज भी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है बीबीसी का और इसका आप देख रहे हैं इस वॉर को लेकर के, आज तो उन्होंने प्यूटिन को कैंसर भी बता दिया और हर्निया भी बता दिया और पता नहीं क्या क्या बता दिया। तो ये जो प्रोपेगेंडा बीबीसी ने उस समय किया कि साहब वो INA का तो कहीं नाम ही ना लिया गया, उसको जिफ बोलते थे, जैपनीज इंडियन फाइटिंग फोर्स, और भारत के अंदर ये बिल्कुल कर दिया जाए कि साहब जापानी आ गए और जापान अपना उपनिवेश भारत को बना लेंगे। और इस हद तक ब्रिटिश प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल रहा कि हमारे डोमिनियन के पहले प्रधानमंत्री जाकर के आसाम में कहते हैं कि बोस अगर जापानी सैनिकों के साथ आता है तो मैं खुद तलवार लेके उससे लड़ने जाऊंगा। ये उनकी अकलमंदी थी, बिना देखे हुए कि बोस किस लिए लड़ रहे हैं या बिना उन चीजों को फायदा किए हुए। और उस भाषण को बीबीसी और ऑल इंडिया रेडियो ये दिन में 4-4 बार ब्रॉडकास्ट करते थे भारतीय जनता को गुमराह करने के लिए, और भारतीय जनता उसके अंदर हो रही। तो एक लिटरेचर ये रहा जो गुप्त रूप से सारे देश में फैलता रहा, और काफी हद तक ऐसे ऐसे लोगों को वृतांत मिले हैं। लेफ्टिनेंट मुलकर का, लेफ्टिनेंट पलटा का मुझे वृतांत मिलता है, जो 2 लड़के जब ये सुनते हैं कि आजाद हिंद फौज बन गई है तो वो पैदल जाते हैं, मतलब पहले ट्रेन से और फिर आगे पैदल, और पता नहीं क्या क्या कष्ट लेके लुधियाना से जाकर के बर्मा में जाकर के आजाद हिंद फौज को ज्वाइन करते हैं। उसके उस लिटरेचर में यहाँ हुआ जो उन्होंने भी लिखा है। तो पहला तो एक लिटरेचर ये आया जिसको के सप्रेस किया गया, नहीं होने दिया गया। उसके बाद सन 45 सितंबर से एक दूसरा साहित्य भारत में आना शुरू, और इसमें जो पहली किताब आई उसका नाम था डायरी ऑफ ए रेबल डॉटर, जिस किताब को अमृतलाल सेठ जो है बंबई से रंगून गए, वहां उन्हें वो पुस्तक मिली, उसको लाके उन्होंने मराठी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब में उस किताब को छापा। ये पहली किताब थी जो सितंबर 1946 के अंदर आजाद हिंद फौज के ऊपर छपी, और ये एक डायरी है जिस डायरी के अंदर एक वीरांगना ने, रानी झांसी ने, तारीख के हिसाब से जब से बोस पहुंचे हैं सिंगापुर में जुलाई 1943 से, तब से लेकर और आखिर तक का रुका, और देखिए किस तरीके से हमारे इस लिटरेचर को कत्ल किया जाता है। अभी जब मैं अपनी पुस्तक लिख रहा था तो इस डायरी में ऑथर का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ लिखा है मिस एम, और हस्बैंड का नाम है उसका पी, और बाकी जितने नाम हैं वो सारे नाम भी कोई नाम नहीं लिखे गए सिवाय नेताजी के नाम के अलावा, वो सब शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि उस समय गिरफ्तारियां चल रही थी, बैंकॉक में भी, रंगून में भी, सिंगापुर में भी, सब जगह में। तो मैं उसके ऑथर को ढूंढने में लगा कि इसकी ऑथर कौन है। तो पी नाम से जितनी रानियां बनती थी मैंने उनकी लिस्ट बनाई, सब कुछ किया। तो एक वीरा निदरबट करके नॉर्वेजियन है महिला, जिन्होंने एक किताब लिखी है रानी झांसी रेजिमेंट के ऊपर, अच्छी किताब है। तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा भाई देखिए मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, आपने भी इतनी रानियों के इंटरव्यू लिए थे, क्या ये आपका कुछ पता चल पाया कि इसकी किताब है? तो बोली नहीं नहीं ये तो फिक्शन नॉवल है, ये तो लक्ष्मी सहगल ने लिखा। तो मैंने कहा भाई ये आपको कैसे मालूम? कि नहीं वो 2008 में मेरे को जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तब लक्ष्मी सहगल ने मुझको बताया कि ये तो मैंने लिखा था। मैंने कहा देखिए 1945 से लेकर 2008 तक तो लक्ष्मी सहगल चुप रही, किसी ने उनको नहीं कहा था कि आप मत बताओ कि आपने नहीं लिखी ये किताब, और अब सडनली आपके हियर से पे, मैं इतिहासकार हूँ, मैं आपकी हियर से को एविडेंस नहीं मानता। तो बड़ी नाराज हो गई मेरे से, अगर ये बात है तो मेरी किताब से वो फोटो यूज बंद करना, मुझे परमिशन दी थी मैंने, क्योंकि रानी लक्ष्मी सहगल का भी जो रोल 1946 से 47 और जो रोल उसके बाद का रोल है वो बिल्कुल एक डिफरेंट रोल है, और उल्टा किया हुआ रोल है पूरा करना। तो मैंने कहा मैं नहीं मानता। लेकिन इस डायरी की खूबी है, मैं आपसे सबसे सजेस्ट करूंगा, ये डायरी गूगल पे उसमें PDF में मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
आप उस डायरी को मनोविज्ञान की दृष्टि से पढ़िए, एक वीरांगना की दृष्टि से पढ़िए, एक मां की दृष्टि से पढ़िए, एक पत्नी की दृष्टि से पढ़िए, एक राष्ट्रवादी महिला की दृष्टि से पढ़िए। इस तरीके की डायरी, वो भी किसी महिला सोल्जर द्वारा लिखा जाना, मेरे सामने दुनिया में उसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं। और जिस प्रकार के राष्ट्रवादी विचारों को उसने अभिव्यक्त किया है, जिन घटनाओं को उसने उसके अंदर अभिव्यक्त किया है, वो घटनाएं अतुलनीय। और एक बात यहां याद रखने की यह है कि जिन प्रवासी भारतीयों ने आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज को अपना सहयोग दिया, इनमें ऐसे ऐसे युवक और युवतियां थी जिन्होंने कभी हिंदुस्तान को देखा तक नहीं। उन्होंने केवल अपने आजा से, अपने आजी से उनके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थी कि हिंदुस्तानी है। और नेताजी की एक कॉल के ऊपर इस तरीके के वृतांत हमें मिलते हैं कि 16 वर्ष की लड़की है, वो कहती है मैं रानी हाथी देखने के लिए, घर वाले उसको बंद कर देते हैं मेरे फ्लोर के ऊपर। रात को 1 बजे रस्सी लगा के नीचे उठती है, 1:30 बजे जाकर के रानी झांसी के बाहर खड़ी हो जाती है। सुबह उसके घर वालों को बुलाया जाता है, तो उसकी बहन कहती है कि तूने जो आभूषण पहन रखे हैं ये हमारे हैं। फिर कहती है कि तूने जो कपड़े पहन रखे हैं ये भी हमारे हैं। वो अंदर जाती है, दूसरी रानी के कपड़े पहन के कपड़े लाके देती है। फिर बहन करती है कि इन कपड़ों से आज मैं तेरा श्राद्ध कर दूंगी, तू हमारे लिए मर गई। वो जवाब देती है, हाँ मैं तुम्हारे लिए मर के आई, दोबारा पैदा हुई हूँ, भारत माता की। एक 16 साल की बच्ची का ये राष्ट्रवाद आप देखिए, जिसने कभी हिंदुस्तान देखा तक नहीं। इन वृत्तांतों को हमारी किसी इतिहासकार ने और किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा, जबकि ये सबके सब उपलब्ध थे। और एक नहीं, 100 वृत्तांत इस तरीके के कि नेताजी को सोने में तोला जा रहा है और सोने की कुछ कमी रह गई है। तो एक वृद्ध महिला आती है, उसके हाथ में एक फोटो है जो सोने का फ्रेम है, उसमें उसके उस बच्चे की फोटो है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो फ्रेम का सोना निकाल के उस पर डाल दिया। इसके ऊपर हमारे अखबारों ने बाकायदा कविताएं बना करके 1946 के अंदर डाली। मैं आ रहा हूं अखबारों के रोड के ऊपर। लेकिन इस तरीके के जो वृत्तांत है, गवाले चले आए, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के गए हुए कि हम पे और कुछ नहीं है, ये गाय और भैंस है, ये सेना के साथ चलेगी और हम इनका दूध निकाल के सैनिकों को देंगे। अपने भाषणों में जिक्र किया नेताजी ने इस तरीके की। और देखिए दुनिया के अंदर मुझे कोई एक उदाहरण दे दे कि 6 महीने के अंदर दुनिया की कोई इस प्रकार की सेना खड़ी होती है जिसमें 66,000 सैनिक है, और जिस सेना को प्रवासी उस देश के इतना धन देते हैं, तो लूटा गया बाद में, वो एक अलग बात जाना कहता था। लेकिन दुनिया के अंदर इस तरीके का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। तो ये जो पुस्तक आई रेबल डॉटर ऑफ इंडिया, इसके बाद में एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई जनवरी 47 के अंदर, ज्ञानी केसर सिंह की फ्रीडम मूवमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। जो वृतांत उस पुस्तक के अंदर, आज हम परमवीर चक्र देते हैं अपने योद्धाओं को। नेताजी ने, अब तो मैंने 91 लोग ऐसे निकाल दिए उस पुस्तक में, तो केवल 36 लोगों का मेंशन, 91 लोगों को तकमाए शत्रुनाश, तकमाए भारत, इस तरीके के उन्होंने मेडल्स दिए थे। रोना है ये हमारा इस देश का कि हमारे देश में आज भी ये बढ़ाया जाता है कि विक्टोरिया क्रॉस को किसको मिला था और आयरन क्रॉस में किसको मिला था, और एक भी आदमी जो है उस नामों को नहीं जानता जिनको नेताजी ने इस तरीके के मेडल। पहली बार मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए भी जब ये प्रदर्शनी लगाई तो उसके अंदर उनके नाम और उनमें से 13 लोगों की जिनकी मुझे फोटो मिल पाई थी उनको उठा करके वहां पे लगाया, और उनमें से 64 लोगों की वीरता के जो कारनामे हैं वो निकाल दिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, कुली जो इंडेंचर्ड लेबर जाती थी गिरमिटिया, कुली बन के वहां तमिलनाडु के कुली, आप मानेंगे कि एक बटालियन पूरी 1000 लोगों की खड़ी कर दी उन कुलियों से उस पीरियड के, और बटालियन इम्फाल में जाके लड़ती है। और जब उसको इम्फाल से विड्रॉल के ऑर्डर होते हैं तो कहता है नेताजी बोला दिल्ली जाना, दिल्ली आगे सिंगापुर पीछे, हम दिल्ली जाएगा मर जाएगा
पीछे नहीं जाएगा। आज भी रेडल की लड़ाई का उनका जिक्र है। रेडल कॉलोनी आज भी चेन्नई के अंदर बनी हुई है और हम लोगों ने उनको कह दिया कि वो लोग भूखे मरे और रानी झांसी ने ये उनकी वो महिलाएं बर्तन मांज करके अपना पैसा कमाती थी। इस तरीके का वृतांत एक बहुत महत्वपूर्ण डायरी और आई है कर्नल महबूब की, जिस डायरी में वो एक जिक्र करता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये साहित्य हमारे बच्चों में जाना चाहिए कि नेताजी को जब ये डोनेशन दिया जा रहा था तो एक बहुत ही गरीब स्त्री आई जिसके कपड़े तक फटे हुए थे और उसने कुछ पैसे देने की कोशिश की और नेताजी का कभी ऊपर कभी नीचे, खैर उन्होंने दे दी। ये तो मैंने उनसे पूछा कि आप हिचक क्यों रहे? बोले मैं हिचक इसलिए रहा था कि अगर मैं इससे पैसे ले लूं तो ये खाएगी क्या, और अगर नहीं लेता तो ये संदेश न लेके जाए कि मैं गरीबों का योगदान नहीं चाहता। उसके बाद में कर्नल महबूब को ऑर्डर दिया कि जाके पता करो ये कहां रहती है, कौन है। उसने शाम को आके बताया कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, गरीब है। तो आजाद हिंद सरकार के खर्चे से उसके रहने का इंतजाम कराया, खाने का इंतजाम कराया और ये आदेश दिए कर्नल महबूब को कि जब देश आजाद हो जाए तो इसको भारत लाके जहां पे ये बसना चाहे वहां पे बसाए। ये पहलू जो है नेताजी के, ये कभी सामने नहीं है। और कर्नल महबूब गए आजादी के बाद में, उस मिस्त्री को लेके आए और पंजाब में बसाया उसको। लेकिन इस तरीके के इतने वृत्तांत हैं इस प्रकार के साहित्य के अंदर जिनको अपने पूरी तरीके से लिखो। आजाद हिंद दल का नहीं जिक्र, एक लाइन में छोड़ देते हैं आजाद हिंद दल बनाया। कोई सोचता नहीं कि आजाद हिंद दल क्या था। आईसीएस का पैरेलल था जिसके 2 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, रंगून में और सिंगापुर में। और आज तक हमारी जनता से छुपा के रखा गया कि जब आजाद हिंद फौज रंगून से भारत की तरफ चली है तो जापानियों से एक संधि की, और संधि ये थी कि जितने इलाकों को अंग्रेजों से आजाद कराया जाएगा उन इलाकों में जापान का झंडा नहीं लगेगा, सिर्फ तिरंगा लगेगा। उन इलाकों का जो प्रशासन है वो आजाद हिंद दल के लोग करेंगे, जापानी नहीं करेंगे। कमांड दोनों सेनाओं का एक होगा, लेकिन आईएनए के जो सिपाही हैं वो आईएनए के एक्ट से गवर्न होंगे आजाद हिंद सरकार के। और 14 बहुत महत्वपूर्ण कि यदि कोई भी सिपाही जापानी या हिंदुस्तानी किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसे तुरंत गोली मार, क्योंकि जापान ने जो कोरिया और चीन में किया था उसका एग्जाम्पल लेकर के। ये लोग कहेंगे कि नेताजी दोजो के कुत्ते थे और दोजो की कठपुतली थे, ये लोग बताते हैं। इन लोगों से किसी ने उस समय ये सवाल नहीं पूछा कि नेताजी तो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं और तुम लोग उस चर्चिल को सपोर्ट कर रहे हो जिसने मैन मेड फेमिन बना के लाखों लोगों को बंगाल में कत्ल कर दिया, तुम उसकी मदद कर रहे हो। उसका कोई जवाब नहीं। इसी प्रकार से फिर बाद में धीरे धीरे लिटरेचर आना शुरू हुआ। जनरल शाहनवाज की किताब आई, एसी चैटर्जी की पुस्तक आई, ऐसे अय्यर की पुस्तक आई। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज के किसी सिलेबस के अंदर ना तो इनको कभी रेफरेंस बुक रखा गया, ना इन किताबों के बारे में पढ़ा। यहाँ तक कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम्स के अंदर दस्तावेज आए 1976 में पब्लिश हो गए, हमारे बड़े बड़े इतिहासकारों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन क्योंकि उनकी वो जो बनाई हुई आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ जाता था तो उसको लिखे। सन 45-47 के बीच में जो इस देश में राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद है जो 1857 में भी नहीं। वो राष्ट्रवाद है जो किसी कांग्रेस के आंदोलन के नेता नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने जैसे ही जनता को पता लगा कि जिफ नहीं थे, ये राष्ट्रवादी, ये देश के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे विशेष तौर से अभ्युदय की बहुत बड़ी भूमिका है इसके अंदर। जो इलाहाबाद से निकलता था पुरुषोत्तम दास टंडन उस समय उसको एडिट कर रहे थे। जिस तरीके से अभ्युदय ने एक सीरीज निकाली, मैंने करीबन 150 कविताएं संकलित करके रिक्नू से उस समय छपाई थी को लेकर के, और 47 में इस तरीके की कविताएं आई हैं उसके अंदर कि सुभाष तुम कहाँ हो, आओ ये बांट रहे हैं देश को, बचाओ। और अज्ञात कवि उनकी कविताएं मौजूद हैं उसमें, और एक एक करके व्याख्यान है इन चीजों के कि क्या क्या बहादुरी हुई। और फिर जो आजाद हिंद
अखबार के अंदर जितनी वीरता की कहानियां थी उन सारी को इन्होंने अभ्युदय ने छापा। दूसरी चीज क्या हुई, हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है जिस नरसंहार का कोई जिक्र ही नहीं करता है। हम लोग तो सिर्फ जलियांवाला तक बात करके रह जाते हैं। नवंबर 1945 के अंदर बंगाल में नीलगंज में एक रात के अंदर करीबन 1760 आजाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों को जो है गोली मारी। आसपास के लोगों को कह दिया गया तो हम डकैत पकड़ के लाए थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, और रातों रात उनको मार के दफना दिया गया, उसको नदी में फेंक दिया गया। और हमारे ग्रेट नेहरू जी ने उसके बाद में वहां पे एक म्यूजियम बनवा दिया कि किसी को पता था कि ना लगे कि क्या। इन सबकी नॉलेज में था, इन्होंने उसमें एक शब्द तक नहीं, एक छोटी सी खबर आके अखबार में रह गई सिर्फ कि नीलगंज के अंदर में गोली चली। लेकिन अब जो उसकी फाइलें मौजूद हैं, तो जब फाइलों में देखा जा रहा है वो क्या निकलता है, उससे बड़ा नरसंहार इस देश के अंदर नहीं। लेकिन वो जो राष्ट्रवाद उस समय आया और इस तरीके की जो कहानियां आई उसके अंदर, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, ये इसकी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, कलकत्ता से दिल्ली लाया जा रहा था मुकदमे के। तो बरेली के स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी तो इन्होंने अंदर से जय हिंद का नारा लगाया। स्टेशन के आसपास जो प्लेटफॉर्म पे लोग थे उन्होंने सुन लिया, उन्होंने नारा लगाया और खींच करके अंग्रेजी सैनिकों से इन दोनों सिपाहियों को भागने दिया और पूरा दिन उनको कंधे पे बिठा के बरेली में उनका जुलूस निकाला और शाम को ला करके वापस। इस तरीके की जब घटनाएं अखबारों में आनी शुरू हुई, और अंग्रेज देखिए बेवकूफ नहीं, 18 लोगों को ट्रायल में डाला था लाल किले में, लेकिन एक सिख, एक हिंदू और एक मुसलमान, वो भी भारत की यूनिटी को टेस्ट कर रहे थे और पूरा भारत एक आवाज में उनके साथ। लेकिन हमारी कांग्रेस लीडरशिप ने उसका पूरा इस्तेमाल किया अपना चुनाव जीतने के लिए, पूरे उसको और इस लिटरेचर को लगातार लगाया। उसके बाद में इनकी जो अपनी किताबें आई, लिखी हुई शाहनवाज वगैरह की और इनके अपने वृत्तांत जो लिखे हुए आए, इनको भी बस फॉरवर्ड तक लिख दिया या करके और लाइब्रेरी में डाल दिया, इनको भी आगे करनी इजाजत नहीं है। मैं दूसरी किताब ला रहा हूँ मैं बैटल्स ऑफ आईएनएस, और तीसरी में ला रहा हूँ ट्रायल्स, क्योंकि दुनिया को सिर्फ ये मालूम है कि लाल किले के ट्रायल हुए और लाल किले के ट्रायल के बाद इतना धोखा दिया गया इस देश को कि साहब वो माफी हो गई है और सब हो गई है और ट्रायल खत्म हो गए। 3 जनवरी को ट्रायल खत्म होता है, 3 है या 7 है, मैं डेट्स पे थोड़ा बुरा रहता है, ये कह के कि सब खत्म हो गया, कोई ट्रायल नहीं होगा। 10 जनवरी को जिगरगाचा से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन के अंदर 1029 आईएनए के सिपाही और अफसर हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करके, ब्लैक मतलब सबसे डेंजरस लिस्ट करके मुल्तान भेज दिया था। मुल्तान में उनका क्या हुआ सन 47 के बाद में कोई नहीं, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। इन फैक्ट्स को जिस तरीके से दबाया गया, उससे पहले लाल किले के ट्रायल से पहले करीबन 13 लैंडिंग हुई थी सबमरीन से आजाद हिंद फौज के लोगों की, सौराष्ट्र, कराची, नेलोर, चिल्का लेक और अपना ये गुराट टेम्पल। और जब ये लोग पकड़े गए, एनिमी एजेंट्स करके इनके मुकदमे चलाए गए, फांसी की सजा इनको शूट किया गया इसी किताब में। और एक मजे की रिपोर्ट तो मैंने देखी सीआईए की, उसने क्या किया हुआ है, जर्मन एजेंट्स इन एशिया करके वो रिपोर्ट है, मात्र 450 पेज की, करीबन 100 पेज उसमें जो है इंडिया के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर। और उस रिपोर्ट पे जितने फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं, उसने उन सबको जर्मन डिक्लेयर किया, चाहे वो स्वामी से अजरन सरस्वती हो, चाहे जी रखना हो, चाहे इंदुलाल जायदेव हो, चाहे रुद्रन शर्मा हो, और ये इनका कमांडर है, ये इनका सबोटेज एजेंट है, और ये इस तरीके का वो उस रिपोर्ट किया। और एम ग्रुप पर ये सारा का सारा जिक्र है, लेकिन हमारे भाई लोगों ने इनको रिपोर्ट्स को भी नहीं देखा। एक और प्रकार का साहित्य जो इससे आया, मैं खासतौर से उस किताब को कोट करूंगा, जी बस इमदाद साबरी। ये बाद में दिल्ली में डिप्टी मेयर भी रहे जनसंघ की तरफ से, पहले मेयर बने ये नेताजी के साथ। उसमें एक का उन्होंने
साथियों का उस समय के अनुसार दी है। डॉक्टर कासलीवाल का जिक्र है जिन्होंने पूरी मेडिकल कोर वहाँ पे बनाई उनके अंदर सारे करके। और आप विश्वास करेंगे कि सितंबर 1946 में ये किताब आती है और नेहरू जी इंतरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं और इस किताब को बैन कर दिया। और आजाद हिंद के मुकदमों को लेकर के खैर तो मैंने अपनी पुस्तक में डील किया है कि 2 अगस्त 1947 तक का मैंने लेटर निकाला है कि कह रहे हैं नेहरू तो भाई अब छोड़ दो, मेरे वाली वही बेइज्जती और बैठक कह रहा है 15 अगस्त के बाद तो ये जो साहित्य इस तरीके का पैरेलल साहित्य है, मैं समझता हूँ एक ऐसा समय आ गया है कि आज हमारी युवा पीढ़ी को इस साहित्य से अवगत कराना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मित्रों, समय को देखते हुए मैं ये जरूर चाहूँगा कि 2-4 सवाल करना चाहें करें, लेकिन सवाल ही करें। अपना अध्यक्ष वक्तव्य दीजिए सर। नहीं, लोग अगर चाहें तो लंबी बात चलेगी। समाप्त कर दें। दरअसल ये विषय तो इतना बड़ा है, खासतौर से कपिल कुमार जी ने जो चीज़ें रखी हैं उससे बड़ी बहस और गुंजाइश है। वो बहस अगर हो तो कहीं चलने वाली बहस है, उसको कोई 20 मिनट में पूरा नहीं किया जा सकता है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि मैं स्वयं बचपन से ही सुभाष बोस का पुस्तक रहा और गांधी जी का भी रहा। सुभाष बोस भी थे, किंतु राष्ट्रपिता तो उन्होंने ही कहा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनका कहना बिल्कुल सही है। इतिहास की पुस्तकों में भी हमने पढ़ा है कि ये मुंशी के माध्यम से गांधी जी तक पहुँचाई गई। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि सुभाष बोस उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब ये सब बातचीत कर रहे थे, और जो प्रमाणित होता है बाद में जो उन्होंने किया उससे सिद्ध भी होता है। कोई गलत नहीं था, वो अपने तरीके से कर सकते, भगत सिंह वगैरह अपने तरीके से कर ही रहे थे, तो उसमें क्या हर्ज की बात है। आदमी अपने तरीके से देश आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत से ही काम कर। और ये सवाल उठता था, वो कर रहे थे बिना वर्किंग कमेटी को और AICC को कॉन्फ्रेंस पे दिया अपने निजी इस बात को लेकर था। ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये वर्किंग कमेटी को कॉन्फ्रेंस पे लिए बिना ऐसा बड़ा काम नहीं करना। लेकिन खैर वो एक अलग बहस का विषय है और फिर कभी उस पर बात होनी चाहिए। मैं जो बच्चे पढ़े तो उनके बारे में कुछ खास कहने की इसलिए नहीं आवश्यकता है कि बड़े स्पष्ट थे, ज़्यादा बहस की बात नहीं थी और संप्रेषणीय थे, हर चीज़ समझ में आती थी जो कही थी। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या था, इस पर हमने कम चर्चा की। मैं सोच रहा था कि शायद इस पर अधिक चर्चा होगी कि आज़ादी की लड़ाई के दौर में क्या हमारे पास कोई अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम था कि नहीं था। फ्रीडम का अर्थ क्या था? क्या केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति ही स्वतंत्रता थी? मान लीजिए कि किसी देश में किसी विदेशी का शासन नहीं है, लेकिन एक डिक्टेटर का शासन है, जैसे कि जर्मनी में हिटलर का शासन समझिए, जापान में पुतिन का समझिए, इटली में मुसोलिनी का समझिए, तो क्या हम उनको स्वतंत्र देश कह सकते हैं? इस पे सोचना चाहिए। खाली विदेशी शासन बहुत ठीक है, वो तो आवश्यक चीज़ है, प्राथमिक चीज़ है, लेकिन केवल इतने से ही हम किसी देश को स्वतंत्र नहीं कह सकते। तो क्या हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें कुछ अलग तरह की स्वतंत्रता की बात थी इससे?
या केवल यही था कि हमें अंग्रेजों को भगा देना है? बाद में अच्छा गांधी जी कहते थे कि बाघ को हटा करके खुद बाघ बन जाना है। एक 1930 में एक कांग्रेस के शासन में कराची में शासन हुआ था, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस समय उस प्रस्ताव के साथ थे, कांग्रेस में थे उस समय। उसमें एक संकल्प पारित किया गया और उसके बाद में तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में संकल्प शपथ ली जाएगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, वो संकल्प दोहराया जाता। यही कारण रहा कि जब हमारा गणतंत्र बना देश, नया संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी का, तो पहले वो स्वतंत्रता दिवस था और जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो गया तो 26 जनवरी को इसलिए गणतंत्र दिवस। और उस गणतंत्र की बात उस कॉन्सेप्ट में की गई, उस आज़ादी का इसी पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, तो पूर्ण स्वराज्य का था, डोमिनियन का नहीं। डोमिनियन 15 अगस्त से लेकर के 26 जनवरी तक हम डोमिनियन थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर बाद में हम गणतंत्र थे। तो ये एक प्रकार से मतलब पूरा जो संकल्प है वो क्या था, मैं इसके 2-4 पंक्तियाँ आपको बताता हूँ कि क्या था। वो गांधी जी ने तैयार किया था और फिर कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट किया और बार बार बनाया गया। उसकी 4-6 पंक्तियाँ बताता हूँ। दूसरे शब्दों की तरह, दूसरे राष्ट्रों की तरह भारतवासियों का भी यह जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए तिलक का गाना था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। दूसरे राष्ट्रों की तरह भारतवासियों का भी यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वे आज़ाद होकर उन्हें अपनी मेहनत का फल खुद भोगें और जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है वह सब सामग्री और सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो, जिससे उनको विकास का पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि अगर कोई सरकार जनता के इन अधिकारों, जनता को इन अधिकारों से वंचित करती है और उसका दमन करती है, तो लोगों को यह भी अधिकार है कि वो सरकार को बदल दें या समाप्त कर दें। और उसी में ये कहा गया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया इसलिए हमको चाहिए सोचना। अंग्रेज सरकार ने न केवल भारतवासियों को उनकी आज़ादी से वंचित किया है, बल्कि उनके शोषण पर ही उसका आधार है। उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का विनाश किया है। इसलिए हमें इस बात का विश्वास हो गया है कि भारतवर्ष को अंग्रेजी राज्य से संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य हासिल कर लेना चाहिए। अब आप समझिए कि इस पूर्ण स्वराज्य का आशय क्या है। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, अपनी प्राथमिक आवश्यकता है। इसमें आर्थिक समानता और स्वतंत्रता की बात है, इसमें सामाजिक दमन से मुक्ति की बात है, उत्पीड़न से मुक्ति की बात है। तो एक प्रकार से स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, वो एक अनिवार्य चीज़ है, उसके बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या बाकी स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं? क्या आर्थिक शोषण समाप्त हो गया है? क्या सामाजिक उत्पीड़न समाप्त हो गया है? क्या सांप्रदायिक विद्वेष समाप्त हो गया है? ये सब भी स्वतंत्रता के ही रूप हैं, क्योंकि जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है वह राष्ट्र स्वतंत्र नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का व्यक्ति अगर स्वतंत्रता अनुभव नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति हम पैदा नहीं करते हैं कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को स्वतंत्रता का अनुभव हो। मैं तो उसकी जगह स्वराज शब्द का इस्तेमाल बेहतर समझता हूँ, वही शब्द था स्वतंत्रता। अगर वो नहीं है तो इसका क्या अर्थ है? और ये बात कांग्रेस के ही प्रस्ताव में नहीं है, जिसका जिक्र किया कपिल जी ने। एक दूसरी धारा भी थी स्वतंत्रता की लड़ाई, और उसमें सुभाष भी थे, पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर उनकी अपनी अलग धारा बनी। उसमें क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे और बहुत सारे लोग इस तरह के थे। वो क्या सोचते थे? वो भी क्या केवल खाली एक टेररिज्म की तरह काम कर रहे थे? उनके विचारों में, कांग्रेस के या गांधी जी के, उनके विचारों में भेद होते हुए भी मूल्यगत स्तर पर वो भी स्वतंत्रता को इसी तरह देख रहे हैं। अगर आर्थिक समानता नहीं हो तो भगत सिंह के लिए स्वतंत्रता नहीं होती।
इसलिए स्वतंत्रता और समानता और मानवीय गरिमा, ये तीनों चीजें अगर नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से स्वतंत्रता नहीं। व्यक्ति की आत्मा अगर स्वतंत्र नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं। इसलिए गांधी ने स्वराज में कहा कि अपने मन का राज स्वराज है। लक्षण बताए उन्होंने उसमें, अपने मन का राज स्वराज है और उसे पाने का उपाय सत्याग्रह, आत्मबल या सत्याग्रह उनके लिए आत्मबल था, करुणा बल, सोल फोर्स कहते वो है उसकी। और उसके लिए स्वदेशी को अपनाने की जरूरत, ये तीसरा सूत्र। चलो गांधी जी को छोड़िए, जब नरमदल और गरमदल की बात होती है उस समय एक बीसी पॉल भी थे और बीसी पॉल ने 3 व्याख्यान दिए थे मद्रास में, जो बाद में पुस्तक के रूप में छपे। वो थे स्वदेशी और स्वराज, स्वदेशी एंड स्वराज नाम से अंग्रेजी में छपे। उन व्याख्यानों का भी मैंने हिंदी अनुवाद किया, वो किताब के रूप में आ रहे हैं। अब उसमें वो वही बात कह रहे हैं जो बाद में कुछ थोड़े बहुत भेद के साथ में गांधी जी बात करें। स्वदेशी का जो आंदोलन था पहले बार जब चला देश में, तो बंग भंग के आंदोलन के सिलसिले में छपाया था। और उससे पहले स्वराज शब्द तिलक पॉपुलर कर चुके थे। गांधी जब हिंद स्वराज लिखते हैं उस समय स्वराज तिलक पहले उस शब्द को चला चुके हैं। तो इसलिए ये पूरी धारा है जो धीमे 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 स्वतंत्रता को परिभाषित करती है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होगा जो एक झटके में आपको सार्वभौमिक मताधिकार दे दे। कितनी लंबी लड़ाई, लोकतंत्र की माँ जिसे कहा जाता है, बाप कहा जाता है, उस देश में भी सार्वभौमिक मताधिकार के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, कितने शताब्दियों तक चली। और स्त्रियों को तो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जाकर के अधिकार 1927 के आसपास मिला इंग्लैंड के और अन्य जगहों। 1915। लेकिन आपके देश में मिला और सबको मिला। तो कोई जाति का भेद नहीं था इसमें, कोई धर्म का भेद नहीं था इसमें, कोई जेंडर का भेद नहीं था। ये एकदम से तो उसकी वजह थी पूरे स्वतंत्रता का आंदोलन जो था इन्हीं मूल्यों को लेकर ही चला। जब वो इन मूल्यों को लेकर चल रहा था तो जब आपको पॉलिटिकल फ्रीडम मिली तो उसके माध्यम से आप वो उन्हीं मूल्यों को व्यवहार में लाने की कोशिश करती थी। तो उसका एक तरीका ये कोई संविधान में इनको स्थान दिया जाए, तो दिया गया। लेकिन वो केवल ये नहीं कि संविधान सभा की कृपा थी, वो उस आंदोलन से पैदा हुई चीज थी। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में ये राष्ट्रवादी धारा, ये प्रगतिवादी धारा, ये फलां धारा इस तरह की चलती है, बाकी जगह भी चलती हो। तो ये नेशनलिस्ट लिटरेचर है, ये समाजवादी लिटरेचर है। लेकिन मित्रों, अगर नेशन का अर्थ सभी नागरिकों का, सभी व्यक्तियों का सामूहिक जीवन है और तो उस जीवन के सारे पक्ष नेशन के पक्ष हैं। इसलिए अगर आप साहित्य में बात करेंगे उसकी, तो जितने प्रकार की असमानता के विरुद्ध जितना लिखा गया है, जितना अमानवीयता के विरुद्ध लिखा गया है, जितना स्त्रियों पर अत्याचार के विरुद्ध लिखा, उपन्यास, कहानी सब कुछ लिखी गई है, वे सब राष्ट्रवादी साहित्य ही हैं। अलग से केवल बढ़े चलो करने से राष्ट्रवादी साहित्य नहीं होता। इसलिए रघुवीर शायद ने कविता लिखी थी किसी जमाने में, इसमें यह था कि चिड़िया में शामिल है मेरी राष्ट्र भावना। तो ये समझने की आवश्यकता है हमको कि ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, ये क्या है दरअसल। और साहित्य तो हमेशा सुबह ही कहा गया कि स्वतंत्रता चरम मूल्य है, पर मैं ये मानता हूँ कि स्वतंत्रता के साथ में समानता भी उतना ही चरम मूल्य है, क्योंकि समानता के बिना कोई स्वतंत्र हो नहीं सकता, उसकी अनिवार्य शर्त है। मार्क्स तक ये कहते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आखिर में जो बताते हैं उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक की स्वतंत्रता ही सबकी स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है। और स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसके बिना स्वतंत्रता हो नहीं सकती, मनुष्य स्वतंत्र हो नहीं सकता। तो हमें इस चीज़ को समझने की जरूरत अवश्य है कि कैसे हम वास्तविक अर्थों में
स्वतंत्रता के इस अर्थ को साहित्य में ढूंढें, अगर हम साहित्य की बात करें तो। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे साहित्य में केवल तो गांधी जी की प्रशंसा में या राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में ये नहीं लिखा गया है, लिखा ही गया है, बहुत सारा मिलेगा, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के यही कारण था, इसका सूरज जिक्र किया तिवारी जी ने, कि शाही ने इसीलिए उसको सत्याग्रह युग कहा, क्योंकि है वो क्षयवाद कहा जाता है, तो उन्होंने उसको सत्याग्रह युग कहा, तो मूल्य स्तर पर वो उसी यही बात करता है। साहित्य जैसा है, बहुत सीधी सीधी, मतलब अगर आपको बता दिया जाए तो वो साहित्य नहीं आता, उसका असर तात्कालिक ही होता है। तो गहरे असर के लिए जितना सूक्ष्म स्तर पे लिखा जाता है, और इसीलिए छायावाद को ये कहा गया कि ये सत्याग्रह युग है। और सत्याग्रह का मतलब ये नहीं खाली देश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया जाए, जहाँ जहाँ अन्याय है, मैं तो गांधी का मतलब यही मानता हूँ, जहाँ जहाँ अन्याय है वहाँ न्यायपूर्ण तरीके से संघर्ष करें। अगर मुझसे कोई कहे कि सत्याग्रह का क्या मतलब है, गांधी का क्या मतलब, तो गांधी का मतलब ही अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। ठीक है, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, वो गांधी का अपना तरीका था, भगत सिंह का अपना तरीका था, सुभाष का अपना तरीका था, पर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही स्वतंत्रता की कसौटी है। ये साहस अगर नहीं है तो हमें मानना चाहिए कहीं न कहीं स्वतंत्रता का भाव अभी हमको पूरी तरह से अनुप्राणित नहीं कर रहा है। अध्यक्षीय वक्तव्य के साथ ये सत्र यहाँ समाप्त हो रहा है। थोड़े समय के लिए भोजन का विराम लेकर के अगले सत्र के लिए ठीक 2:30 बजे फिर यहीं हम मिलते हैं। मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष महोदय तथा तीनों विद्वानों को जिन्होंने अपने आलेख